जय सिया राम। चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? Definition: group of individuals of same species living in a common geography share and compete for resources and potentially interbreed. Okay. फीचर ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ मोड, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा रैट रह रहा है एक ही जोग्राफिकल एरिया में। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी: no habitat have single individual, natural selection acts on individual. Population: a group of organism of one species occupying a defined area. बिल्कुल, जैसे यहाँ पे कॉमन ज्योग्राफी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन और सेम स्पीसीज, which living in a common geography, which can compete and share resource and can interbreed. Group of organism of same species, group of organism of one or same species which living in a common geography, which can compete and share resources and can interbreed. Group of organism of one or same species having living in a common geography. Group of organism of one or same species, group of organism of same or one species which living in a common geography, which can compete and share resource and can interbreed. Group of organism of one or same species, which live in a common geography, which can compete and share resource and can interbreed. Why we need to study population ecology? Reason: in any place, a group of individual or population available. Natural selection is a potent force for evolution. It works on population. Why we need to study population ecology? Reason: in any place, group of individual or population available. In any place, group of individual or population available. Natural selection is a potent force for evolution. It works on population. View of ecologist: both product का क्या view था? Both product of sexual and asexual reproduction is considered for population. जैसे यहाँ पे रोज प्लांट है, ठीक है, बाय स्टेम कटिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहेंगे। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये माइस है तो फिर यहाँ पे ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। जेनेटिसिस्ट: ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड फॉर काउंटिंग पॉपुलेशन। जेनेटिसिस्ट यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, geneticist only product of sexual reproduction is considered for counting population. geneticist क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ only product of sexual reproduction is considered for counting population. okay, but ecologist ये दोनों count कर रहे हैं. okay. attribute: parameter or attribute to study population. single individual have birth, but group of individual or population have birth rate. एट्रीब्यूट कहेंगे पैरामीटर और एट्रीब्यूट। पैरामीटर और एट्रीब्यूट टू स्टडी पॉपुलेशन। सिंगल इंडिविजुअल have birth, but group of individual or population have birth rate. Single individual have birth, but group of individual or population have birth rate.
सिंगल इंडिविजुअल हैव बर्थ, सिंगल इंडिविजुअल हैव बर्थ, बिल्कुल, बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, बर्थ रेट, सिंगल इंडिविजुअल सो बर्थ और डेथ, बट पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट इट इज इंक्रीज पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, 20 लोटस, आफ्टर 1 ईयर बाय रिप्रोडक्शन करके ये 24 लोटस बन गया, ठीक है। तो फिर बर्थ रेट क्या है, इनिशियल 20 था, फाइनल 20 है, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, वो तो परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बस इतना ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, मतलब 24 माइनस 20 अपॉन 20, तो ये हो गया 4/20 बराबर 1/5, ठीक है। बर्थ रेट 0.5 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर, ठीक है। अब देखते हैं डेथ रेट, डेथ रेट इट इज़ रेशियो ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, इट इज़ नंबर ऑफ डेथ, इट इज़ नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, इट इज़ नंबर ऑफ डेथ, इट इज़ नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल, जैसे ये लैबोरेटरी है, यहाँ पे 40 फ्रूट फ्लाई है, बाय डेथ इन 1 वीक, बाय डेथ इन 1 वीक ये 36 फ्रूट फ्लाई, 40 फ्रूट फ्लाई, ठीक है, बाय डेथ इन अ वीक ये अब बन चुका है 36, बचा है फ्रूट फ्लाई, हाँ, डेथ 1 महीना के बाद इतना हो गया। तो फिर ये डेथ रेट इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ये हो गया यहाँ पे 40 माइनस 36 अपॉन 40, तो ये हो गया 4/40 बराबर 0.1, ओके। 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई और वीक, 0.1 इंडिविजुअल, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, तो फिर मतलब 1 इंडिविजुअल पर 10 फ्रूट फ्लाई पर वीक, ओके। Sex ratio, individual is either male or female but population have sex ratio, individual is either male or female but population have sex ratio। India sex ratio 9:34, वो हो गया, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो वो तो माइनस में आ जाएगा, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल की डेथ रेट में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैव सेक्स रेशियो, जैसे इंडिया में सेक्स रेशियो 9:34 है, मीन्स 9:34 ये फीमेल है पर 1000 मेल, 1000 मेल ये यहाँ पे पर कैपिटा है, ठीक है। सेक्स रेशियो 9:34 फीमेल, 9:34 फीमेल और 1000 मेल है, ओके। एज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डिवाइड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, 0 to 14 ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, 14 to 50 ये हो गया रिप्रोडक्टिव, और फिर 50 प्लस टू डेथ ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है इसको डिवीजन करने का, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल। वी कैन प्लॉट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वी कैन प्लॉट अ ग्राफ विथ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई एक्सिस एंड number of individual on x axis, we can obtain age distribution pyramid, we can obtain age distribution pyramid, age pyramid, three types of graph, यहाँ पे ये expanding है, ये यहाँ पे हो गया एक्सपेंडिंग में क्या, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू पुअर, लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, दिस ग्राफ बिलोंग टू पुअर, लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, दिस ग्राफ बिलोंग टू this group belong to poor less developed countries, this graph belong to poor less developed countries और developing countries। इधर हो गया यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन और इधर हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पोस्ट रिप्रोडक्टिव और ये है प्री रिप्रोडक्टिव और ये एक्सपेंडिंग है, तो आगे चल के पहले 500 था तो ये 5000 सब बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब दिस ग्राफ बिलोंग टू पुअर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, दिस ग्राफ बिलोंग टू this graph belong to poor less developed countries और developing countries, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम
not implemented well, health facility not good. तभी तो ये इंक्रीज होते जा रहा है. बट हाँ ऊपर आता है तो थोड़ा कम भी हो रहा है, मतलब कुछ इंसान की मृत्यु भी हो रही. हाँ तो एक तो रिप्रोडक्शन ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, हेल्थ फैसिलिटी नॉट गुड. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये ग्राफ है. शेप नॉट चेंज बट साइज गेट चेंज. प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ठीक है. The age pyramid with broad axis indicate, ये यहाँ पे ब्रॉड एक्सिस है. ठीक है. एक्सपेंडिंग होगा तो ये भी ब्रॉड होगा. द पिरामिड तो यहाँ पे मतलब हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल यंग होगा तभी तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तभी ये चौड़ा होगा. हाँ क्योंकि बोला है ब्रॉड एक्सिस. ठीक है. हाई परसेंट ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल नहीं, तो ये तो टॉप ब्रॉड हो जाएगा. लो परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल नहीं, तो रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा अगर कम परसेंट होगा तो. स्टेबल इन दोनों में तो ये दोनों बराबर होता है नहीं, ये भी नहीं होगा. तो क्या होगा हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल. बिल्कुल. स्टेबलाइजिंग this shape is of developed countries. Stabilizing this shape is of developed countries. Bell shape no change in size and shape. No change in size and shape. This shape is of developed countries. This shape is of developed countries. Stabilizing this shape is of developed countries. Stabilizing this shape is of developed countries. This shape is of developed countries. This shape is of developed countries. Developed country है. इसका शेप कैसा है? बेल शेप. ये ऐसे घंटा की तरह. हाँ घंटा में ऐसे टर्न बजाने के थोड़ा छोटा ऐसा रहता है ना. हाँ तो वही हो गया बेल शेप. ओके. ऐसे सेम और फिर वहाँ पे ऐसे घंटा जैसा है बेल शेप. The shape of developed countries. The shape is of developed countries. Bell shape. No change in size and shape. Okay. इधर हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल. इधर एज डिस्ट्रीब्यूशन और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ओके. ये कुछ टाइम बाद भी ये सेम है. ठीक है. तो ये क्या है? स्टेबलाइजिंग कर्व है. हाँ डेवलप कंट्रीज़ का है. ओके. डिक्लाइनिंग हाई डेवलप कंट्रीज़. डिक्लाइनिंग हाई डेवलप्ड कंट्रीज़. हाईली डेवलप कंट्रीज़. Declining highly developed countries spindle shape or urn shape. Highly developed countries spindle shape or urn shape. 1000 फिर 2000 फिर 1000. मतलब प्री रिप्रोडक्टिव उससे छोटा है, उससे ज़्यादा बड़ा हुआ रिप्रोडक्टिव, फिर उससे छोटा हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ये स्पिंडल शेप ऐसा आ गया. मतलब ये स्पिंडल तरह का है. और इसे कहते हैं अर्न शेप. ये ऐसे करके झोला जैसा है. अर्न शेप और स्पिंडल शेप. इसका डिक्लाइनिंग का हाईली डेवलप्ड कंट्री. जैसे अब दो हैं तो एक ही अब चाइल्ड हो रहा है अगर, तो फिर आगे चल के तो पॉपुलेशन कम ही होगा. तो ये डिक्लाइनिंग है हाईली डेवलप्ड कंट्री का है. Highly developed countries spindle shape or urn shape. Okay. The population density it is number of individual per unit area. It is number of individual per unit area represented by an. It is calculated by counting number per unit area. It is number of individual per unit area. It is number of individual per unit area represented by an. It is number of individual per unit area represented by an. It is calculated by counting number per unit area.
It is number of individual. It is number of individual per unit area. It is number of individual per unit area represented by n. It is number of individual. It is number of individual per unit area. It is number of individual per unit area. ठीक है. Population density, हाँ, number represented by n, capital N. It is calculated by counting number per unit area. It is calculated by counting number per unit area. It is calculated by counting number per unit area. In most of the cases, best way to calculate population density is counting number. In most of the cases, best way to calculate population density is counting number. But this method is not useful in every cases. It is calculated by counting number per unit area. Okay, it is calculated by counting number per unit area. It is calculated by counting number per unit area. In most of the cases, best way to calculate population density is counting number, but this method is not useful in every cases. Other method for population density. पहला area cover और biomass. Other method but this method is not useful in every cases. Other method for population density. Other method for population density, area cover or biomass is calculated. Other method for population density, area cover or biomass is calculated. Area cover or biomass is calculated. Reason, since banyan is a single tree but have more effect. Other method for population density, area cover or biomass is calculated. Reason, since banyan is a single tree but have more effect. बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक बनियान ट्री है और यहाँ पे कैरेट घास 200 है, बट बनियान ट्री का ज़्यादा इफेक्ट है. ओशियन, नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल फिश. तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फिश इन सिंगल कैच में जितने फिश पकड़ाई उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है. थर्ड, बैक्टीरिया. इन केस ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ कॉलोनीज गिव पॉपुलेशन डेंसिटी. जैसे पेट्री प्लेट है, नंबर ऑफ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. टाइगर, इन टाइगर सेंसस इनडायरेक्ट मेथड टू काउंट पॉपुलेशन. इन टाइगर सेंसस इनडायरेक्ट मेथड टू काउंट पॉपुलेशन. तो फिर यहाँ पे फुट स्टेप देखते हैं. पग मार्क और फिकल पैलेट मतलब फिशेस और पग मार्क यूज टू काउंट नंबर ऑफ टाइगर. ओके. अब देखते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ. population affected by resources, food और हो गया shelter. ठीक है. population affected by resources, food और shelter. population affected by resources, food और shelter. ठीक है. competition यहाँ पे reduced weather. population affected by resources, हाँ, food और shelter. ठीक है. और second competition. third reduced weather. parameter which affect population density. initial population density NT से represent करते हैं. ठीक है. टी टाइम पे और फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी मतलब t+1 टाइम पे तो n+t+1. ओके. नेटलिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, नेटलिटी. मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम. इमाइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज मूव इन अ पर्टिकुलर एरिया. इमाइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज मूव आउट फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. नेटलिटी, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम. ओके. तो यहाँ पे बर्थ हो रहा है,
बर्थ ये प्लस, और फिर डेथ हो गया तो ये माइनस, और फिर यहाँ पे इमाइग्रेशन ये प्लस है और इमाइग्रेशन यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। एन टी प्लस वन पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन टी प्लस वन पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी बराबर एन टी प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई। ये यहाँ पे हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी पहले जो है मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई, ठीक है। तो मतलब बी प्लस आई माइनस ई प्लस डी, ओके। पेंडेमिक इन ऑल कंट्रीज, वो सभी कंट्रीज में उसे कहेंगे पेंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक ये लार्ज एरिया में होता है, एपिडेमिक ये लार्ज एरिया में होता है, ठीक है। एंडेमिक स्मॉल एरिया में होता है एंडेमिक, एपिडेमिक लार्ज एरिया, पेंडेमिक इन ऑल कंट्रीज। पेंडेमिक in all countries, pandemic in all countries, epidemic large area, pandemic in all countries, epidemic large area, endemic small area. A newly colonized city, population growth mainly occur due to immigration. हाँ न्यू कॉलोनी तो वहाँ से बाहर से लोग आएंगे वहाँ रहने, तो इमाइग्रेशन, ठीक है बिल्कुल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल कैन वी ऑब्जर्व सम पैटर्न इन पॉपुलेशन ग्रोथ? Can we observe some pattern in population growth? We can observe two main pattern in different types of a population: exponential or geometric growth model, exponential or geometric growth model, logistic growth model, exponential or geometric growth model, exponential or geometric growth model, exponential or geometric growth model, second logistic growth model, okay। exponential or geometric growth model, exponential or geometric growth model for unimpeded uninterrupted growth, resources should be unlimited, enough food and shelter present. For unimpeded uninterrupted resource growth, resources should be unlimited, for unimpeded uninterrupted growth, resources should be unlimited। हाँ अनलिमिटेड होना चाहिए तब तो होगा बहुत ज़्यादा। For uninterrupted growth, resources should be unlimited, बिल्कुल। enough resource and shelter present, then population so exponential growth, बिल्कुल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा होते जा रहा है, ओके। बायोटिक पोटेंशियल R इक्वल्स टू B माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। R ये हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, R हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। ये हो गया बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, okay। intrinsic rate of natural increase under environmental unlimited conditions, R बराबर B माइनस डी, rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase, R बराबर B माइनस डी, rate of natural increase, R बराबर B माइनस डी, बायोटिक पोटेंशियल R बराबर B माइनस डी, ठीक है। R हो गया ये रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अंडर एनवायरमेंटल अनलिमिटेड कंडीशंस, R बराबर B माइनस डी, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, R बराबर B माइनस डी, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, R बराबर B माइनस डी, ठीक है।
आर क्या हो गया, ये रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अंडर इन्वायरमेंटल और अनलिमिटेड कंडीशन में गया, हाँ बिल्कुल। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, डी एन अपॉन डी टी ये हो गया, एन हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन। ओके, जैसे यहाँ पे एन इनिशियल में कितना है 10,000, बाद में कितना हो गया 100,000, तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0.025 इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर डी एन अपॉन डी टी बराबर आर टू इंटू एन, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर इंटू एन, ये रेट हो गया, ठीक है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, आर इक्वल्स टू rate of natural increase, r is equals to rate of natural increase for different species it is different, for different species it is different। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया n, ठीक है। टाइम हो गया स्मॉल टी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, ये यहाँ पे जे शेप कर्व है, ठीक है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, जे शेप कर्व, एन यहाँ पे क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, ये जी शेप कर्व है, ओके। आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट, आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, हाँ फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट। नॉर्वे रेट के लिए हो गया 0.015, ह्यूमन के लिए 0.0205, ठीक है। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी। सिमिलर इक्वेशन इन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी सेम है। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी फाइनल वाला, एन टी हो गया फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, आर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी हो गया टाइम, ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, यहाँ पे नेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे इसलिए बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, ओके। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी। Nt equals to n naught into e to the power rt, Nt equals to n naught into e to the power rt। To show exponential growth, हाँ इसके लिए स्टोरी था ना, दिस स्टोरी टेल्स एक्सपोनेंशियल इज डिफिकल्ट, हाँ बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और वर्नहॉल्ट पर्न लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, वर्नहॉल्ट्स पर्न लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, वर्नहॉल्ट पर्न लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन नेचर एज रिसोर्सेज लिमिटेड, हाँ तो यहाँ पे इक्वेशन है डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू के माइनस एन अपॉन के, क्योंकि के मैक्सिमम तो के ही हो सकता है, हाँ तो फिर के माइनस एन अपॉन के, या फिर डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू 1 माइनस एन अपॉन के, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी,
आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, के हो गया यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, dn upon dt equals to dn upon dt equals to r n into k minus n upon k. ठीक है, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इज ऑन वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे एन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है, वाई पे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ठीक है, और इधर यहाँ पे टाइम है, ओके, 1 minus n by k, 1 minus n upon k stand for impact of environmental resistance, stand for 1 minus n upon k, 1 minus n upon k, ये क्या करें, स्टैंड फॉर इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, हाँ क्योंकि के यही तो कैरिंग कैपेसिटी, बस इतना ही है, रेजिस्ट कर सकता है, मतलब कि स्टैंड फॉर इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, stand for impact of environmental resistance, stand for impact of environmental resistance, stand for impact of environmental resistance, आर हो गया यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, सॉरी आर हो गया यहाँ पे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और इधर है और इधर ही है, कि जैसे यहाँ पे कैरिंग, ये कोई फॉरेस्ट है और इसका एग्जाम्पल है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट है, अच्छा हाँ, और ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट, हाँ वहाँ तो सब कुछ इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि वो तो अनरियलिस्टिक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ देखो ये फॉरेस्ट है कि इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट बाय रिसोर्सेज, क्या हो गया ये कैरिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट बाय resources, maximum population density of one species supported by nature by resources, क्या हो गया कैरिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट बाय रिसोर्सेज, number of individual of same species, number of individual of same species supported by forest by resources, number of individual of same species, number of individual of same species, number of individual of same species supported by forest by resources, maximum population density of one species supported by nature by resource, हाँ जैसे यहाँ पे 20 लाइन सपोर्टेड बाय रिसोर्स, लाइन का कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा 20, फैक्टर्स ऑन विच कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड, साइज ऑफ हैबिटेट, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसका लाइफ स्पेन कितना है, हाँ नो स्पीसीज कैन क्रॉस इट्स कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, उसके बाद रिसोर्सेज ही नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एन हो गया, ठीक है, इधर टाइम है, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन इज वेरी लेस टू कैरिंग कैपेसिटी, के बहुत ज़्यादा है एन के कंपैरिजन में, तो एन को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट होगा के, तो फिर यहाँ पे डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियल इन इनिशियल कंडीशन, पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन इनिशियल कंडीशन, ये हो गया यहाँ पे एन, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे के है, असिम्पटोट यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे केस वन था एट पॉइंट ए, केस वन है एट पॉइंट ए, के यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एन से, तो फिर एन को नेगलेक्ट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, ओके। केस टू एट पॉइंट बी, केस टू एट पॉइंट बी, क्लोज टू कैरिंग कैपेसिटी,
At point B, at point B close to carrying capacity, at a point B close to carrying capacity. At a point B, at a point B close to carrying capacity, at point B ये close to carrying capacity है, ठीक है. dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के. तो यहाँ पे n बराबर k है. dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर इंटू एन, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर इंटू एन के माइनस एन अपॉन के. यहाँ पे देखो dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर इंटू एन, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर इंटू एन, dn upon dt is equals to r into n, dn upon dt is equals to dn upon dt is equals to r into n, dn upon dt is equals to r into n k माइनस एन अपॉन के माइनस एन अपॉन के. हाँ एट पॉइंट बी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है तो अब इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ये तो एन किसके बराबर हो गया, अब के बराबर हो गया, तो फिर n माइनस एन जीरो हो गया, तो फिर ये जीरो हो गया, तो डी एन अपॉन डी टी बराबर जीरो. हाँ क्योंकि n कांस्टेंट है. व्हेन पॉपुलेशन रीचेज टू, और जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो अब इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर सकता. व्हेन पॉपुलेशन रीचेज टू वैल्यू ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी इज कांस्टेंट. बिल्कुल. और ये जो कांस्टेंट हो गया इसे कहते हैं असिम्पटोट. जब ये के पास पहुँच गए, इनिशियल में जब बहुत कम है तो उस टाइम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा. डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू एन. When will be logistic growth curve is asymptote, जब n इक्वल्स टू के हो गया. बिल्कुल. which is not possible, जब k से ज़्यादा हो जाए. no population can cross carrying capacity. okay, k minus n ये क्या है, additional number of individual that can environment can support, that an environment can support. okay, 1 minus n upon k और k minus n upon k ये क्या है, fraction of k that is available for population growth. fraction of k that is available for population growth. अब देखते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. आर इक्वल्स टू बी माइनस डी. पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आर बराबर बी माइनस डी. आर ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. रिप्रोडक्टिव फिटनेस, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. पॉपुलेशन इवॉल्व टू इंक्रीज आर, पॉपुलेशन इवॉल्व टू इंक्रीज आर विथ टाइम. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन इवॉल्व टू इंक्रीज आर, इंक्रीज reproductive fitness, increase reproductive fitness. with time organism evolve most efficient reproduction strategy. population evolve to increase our population evolve to increase our increase reproductive fitness. population evolve to increase our increase reproductive fitness. हाँ, population evolve to increase our with time organism evolve most efficient reproductive strategies. some organism produce large number of progeny, some organism produce less number of progeny. एग्जाम्पल सैल्मन फिश और बैम्बो प्लांट, ये दोनों लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी. ठीक है. और फिर ऑयस्टर, प्लाजिक फिश लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. बर्ड्स एंड मैमल्स लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड प्रोजेनी साइज लार्ज. ओके. population interaction, no population present alone in any area. population interaction among themselves. हाँ ये तो होना ही है. ड्यूरेशन ऑफ इंट्रैक्शन, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म. फिर इंट्रैक्शन डिपेंड वेदर टू स्पीसीज गेट बेनिफिट और नॉट. बेनिफिट है तो फिर प्लस, अगर हार्म हो रहा है और लॉस हो रहा है तो माइनस, न्यूट्रल है तो ज़ीरो. ओके. नेम ऑफ इंट्रैक्शन, प्रीडेशन. नेम ऑफ इंट्रैक्शन प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन. नेम ऑफ इंट्रैक्शन स्पीसीज है और स्पीसीज भी. ठीक है. तो यहाँ पे प्रीडेशन, शिकार हो रहा है तो प्रीडेटर जो है उसको फ़ायदा हुआ, बट जो प्रे जिसका शिकार हो गया वो तो नेगेटिव में माइनस में चला गया. ठीक है. कंपटीशन में किसी को फ़ायदा नहीं होता, दोनों नुकसान में, दोनों माइनस माइनस. ठीक है. पैरासिटिज्म, जो होस्ट है वो तो माइनस में है और जो पैरासाइट है वो प्लस में है. कमनसेलिज्म, एक ज़ीरो कर सकते हैं और एक का तो हमेशा प्लस ही रहेगा. कमनसेलिज्म ज़ीरो हो गया, स्पीसीज ए ये ज़ीरो हो गया. ठीक है. स्पीसीज बी ये प्लस.
कमन सेलिज्म यहाँ पे स्पीस एक जीरो और दूसरा प्लस, दूसरा हमेशा प्लस ही रहेगा। हाँ, ये ज़ीरो हो गया और वो प्लस। म्यूचुअलिज्म एक प्लस है और म्यूचुअलिज्म दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पड़ रहा है। हाँ, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में म्यूचुअलिज्म। कमनसेलिज्म एक प्लस और एक ज़ीरो। अमनसेलिज्म एक ज़ीरो, कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, और दूसरा माइनस में है। अमनसेलिज्म एक माइनस है, अमनसेलिज्म एक माइनस है, क्योंकि एक को नुकसान और दूसरे को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, जीरो, न्यूट्रल है वो। अमनसेलिज्म ज़ीरो और माइनस, वन स्पीसीज हार्म अनदर, नो इफेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या, पेनिसिलियम ये फंगस है, इसको ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। बट यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे माइनस में, क्योंकि इसकी ग्रोथ डिक्रीज हो गई। ये पैट्री प्लेट है। ओके, अनदर एग्जांपल सनफ्लावर, सम केमिकल्स रिलीज अदर प्लांट नॉट ग्रो। तो फिर यहाँ पे सनफ्लावर ये ज़ीरो है, ठीक है, और फिर सम केमिकल्स रिलीज अदर प्लांट नॉट ग्रो, तो फिर यहाँ पे अदर प्लांट ये माइनस में आ गया। एलिलोकेमिक सनफ्लावर यहाँ पे ये ज़ीरो में, ठीक है। अनदर एग्जांपल सनफ्लावर, सम केमिकल्स रिलीज अदर प्लांट नॉट ग्रो, तो सनफ्लावर ज़ीरो बट अदर प्लांट इसके लिए माइनस हो गया, ठीक है। प्रीडेशन स्पीसीज ए जो कि प्रीडेटर है, जो शिकार कर रहा है, वो प्लस में है। स्पीसीज ए जो कि प्रीडेटर जो शिकार कर रहा है वो प्लस में है, बट जो प्रे हो गया, शिकार हो गया, वो माइनस में है। प्रीडेटर वो प्लस में है, प्रे जो शिकार है वो माइनस हो गया बेचारा। एग्जाम्पल लायन ईटिंग डियर, क्रो ईटिंग ग्रेन, ठीक है, क्रो ईटिंग ग्रासेस। हाँ बिल्कुल, ये भी तो है। व्हाट रोल प्रीडेशन प्ले, पहला इट इज़ कंडुइट फूड चेन, चैनल ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज़ कंडुइट फूड चेन और चैनल ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज़ कंडुइट फूड चेन, इट इज़ कंडुइट मतलब चैनल ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज़ कंडुइट ऑफ एनर्जी, चैनल ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, ये क्या, प्रिकली पियर कैक्टस, ये यहाँ पे प्रे है। It is conduit of energy or flow of energy. Maintain biodiversity, disaster या predator। पहला तो ये हो गया, it conveyed what role predation play, it is a conduit of energy or flow of energy, ठीक है। सेकेंड कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, प्रिकली पियर कैक्टस ये प्रे है और मोथ ये प्रीडेटर है, ठीक है। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे प्रिकली पियर कैक्टस, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे maintain control population of prey, prickly pear cactus, ठीक है, ये प्रे है और यहाँ पे मोथ ये प्रीडेटर है। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, हाँ कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, ये प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। जैसे एग्जांपल प्रिकली पियर कैक्टस ये प्रे है और यहाँ पे मोथ ये प्रीडेटर है, ठीक है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, एग्जांपल पिजास्टर ये प्रीडेटर था, ठीक है। कंट्रोल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे,
कंट्रोल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे देखते हैं. प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया स्प्रेड वेरी फास्ट. ये बाहर से लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में. ये नॉट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया. कौन? प्रिकली पेयर कैक्टस. प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया स्प्रेड वेरी फास्ट. पॉपुलेशन bring under control. Population bring under control by introduction of moth. control population of prey. तो moth prey के population को control किया. prickly pear cactus जो था introduce into Australia ठीक है very fast. तो फिर population bring under control by introduction of moth. control population of prey. control population of prey ठीक है. maintain biodiversity. Pigaster starfish. It is an important predator. Pigaster starfish, it is an important predator. Removed then competition increases and 10 vertebrate extinct. उसके फिर से 645 था शायद या 47 था. Maintain biodiversity. Pigaster starfish, it is an important predator. Removed then competition increases and 10 invertebrate extinct हो गया. ठीक है. जैसे यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है ठीक है. पिजास्टर स्टारफिश ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था. ओके तो यहाँ पे पिजास्टर को जब हटाया, रिमूव्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर. रिमूव्ड देन कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज एंड 10 इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट. ओके तो ये हाँ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखा था पिजास्टर बिल्कुल. सम मैकेनिज्म टू अवॉइड प्रीडेशन. प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर और अडाप्टेशन हो गया. प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर प्रूडेंट मीन्स हो गया एफिशिएंट. prudent behavior of predator prudent means हो गया efficient और चालाकी, smartness. prudent behavior of predator. nature develops prudent efficient behavior of predator. this means predator not kill all prey. predator not kill all prey at once without any need. अच्छा prudent behavior of predator. अच्छा prudent behavior of predator. nature develops the prudent efficient behavior of predator. that means लेकिन यहाँ पे प्रे ही ज़्यादा सही होगा. nature develops prudent efficient behavior of prey. this means predator not kill all prey at once or without any need. फिर यहाँ पे adaptation क्या है? some prey evolve adaptation to protect themselves from predator. adaptation in animals. camouflage blend with surroundings. grasshopper not visible in grass. camouflage blend with surrounding. grasshopper not visible in grass. stick insect not visible on stem. बिल्कुल grasshopper not visible in grass. grasshopper not visible in grass. stick insect not visible on stem. second mimicry. a harmless prey. mimicry. a harmless prey mimic a harmful prey to avoid predator. mimicry. a harmless prey mimicry. a harmless prey a harmless prey mimic a harmful prey to avoid predator. camouflage blend with surrounding. ठीक है. grasshopper not visible in grass.
Stick insect not visible on stem. Stick insect not visible on stem. Stick insect not visible on stem. Mimicry, a harmless prey mimic a harmful prey to avoid predator. Mimicry, a harmless prey mimic a harmful prey to avoid predator. Poison, monarch butterfly poisonous. Monarch butterfly poisonous. This poison acquired by this butterfly when its larvae feed on poisonous weed. Mimicry हो गया, a harmless prey mimic harmful prey to avoid predator. A harmless prey mimic a harmful prey to avoid predator. ठीक है. Poison, monarch butterfly poisonous. This is poison acquired by this butterfly when its larvae feed on poisonous weed. Okay. Warning coloration, some frog bright color give warning to host. Warning coloration, some frog bright color give warning to host. Okay. Adaptation in plants. So some problem with the plant. Some problems with plant. Plant cannot run from predator. Second, 25% insects are phytophagous. Some problems with the plant. Plant cannot run from predator. Some problems with plant cannot run. Plant cannot run from predator. Some problem with plant. Some problems with a plant. Plant cannot run from predator. Plant cannot run from predator. Some problems with a plant. Plant cannot run from predator. Some problem with a plant cannot run from predator. 25%. Plant cannot run from predator. 25% insects are phytophagous. 25% insects are phytophagous. वो प्लांट ही खाता है, बताओ. 25% insects are phytophagous. ठीक है. Plant show adaptation. पहला thorn on cactus. Thorn and spines. Thorn किस में? Cactus and bougainvillea, and spines cactus में. सॉरी, थॉर्न सिट्रस और बोगनविलिया में. थॉर्न सिट्रस और बोगनविलिया में. ठीक है. एंड स्पाइंस कैक्टस में. थॉर्न सिट्रस और बोगनविलिया में. थॉर्न हो गया, सिट्रस एंड बोगनविलिया में. ठीक है. एंड स्पाइंस कैक्टस में. थॉर्न्स सिट्रस और बोगनविलिया एंड स्पाइंस कैक्टस में. ठीक है. Avoid predator. Morphological adaptation. Avoid predator. Morphological adaptation. Avoid predator. थॉर्न सिट्रस बोगनविलिया एंड स्पाइंस कैक्टस. ठीक है. अवॉइड प्रीडेटर. मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन. अवॉइड प्रीडेटर. ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन. निकोटीन स्टाइरिन कैफीन. ड्यू टू दिस केमिकल्स एनिमल्स not eat plant. Due to these chemicals, animals not eat plant. Biochemical. Thorns, citrus, bougainvillea and spines cactus. Avoid predator. Morphological adaptation.
this due to this chemicals animals not eat plant biochemical. Nicotine, styrene, caffeine. 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 Due to these chemicals, plant not eat. हाँ, nicotine, styrene, caffeine. Nicotine, styrene, caffeine. Due to these chemicals, plant not animals not eat plant. Biochemical adaptation हो गया. फिर उसके बाद कैलोट्रोपिस मिल्कवीड एनिमल नॉट ईट दिस प्लांट कैलोट्रोपिस एनिमल नॉट ईट दिस प्लांट हैव पॉइजन कार्डियक ग्लाइकोसिडिक व्हेन एनिमल कंज्यूम दिस तो इसे अनइजीनेस फील होता है, डेट्स वाई इसे कंज्यूम नहीं करता. Calotropis milkweed animal not eat this plant have a poison cardiac glycosidic when plant consume this तो उसे uneasiness feel होता है. ओके, अब देखते हैं competition closely related species occupying the same nest. इसके बीच में competition होता है, ठीक. competition species A species B कॉम्पिटिशन स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों स्पीसीज नुकसान में रहता है तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है. डार्विन व्यू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. डार्विन का क्या व्यू था? इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. ओल्ड डेफिनेशन क्या है? Competition is a type of interaction where two closely related species compete for those resources which are limited. Competition is a type of interaction where two closely related species compete for those resources which are limited. It is not always true. Resources are limited or it occur between closely related species. Support against old definition. Some examples against old definition. Some example against old definition. Some example against old definition. Old definition जो ये रहा, ठीक है. Some example against old definition. Support against old definition. Some examples against old definition. तो पहला हो गया साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड कम्पीट विथ फिश फॉर जू प्लैंकटन. तो यहाँ पे फ्लैमिंगो बर्ड आ रही है, ठीक है, और ये फिश, इन दोनों का कंपटीशन हो रहा है किसके लिए? जू प्लैंकटन के लिए. क्या फ्लैमिंगो बर्ड और फिश ये दोनों क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है? नहीं, एक बर्ड है और एक फिश है. कहाँ से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है? तो फिर साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड compete with fish for zooplankton. This proof competition not occur always in between closely related species. Okay. Second, abingdon tortoise get extinct in Galapagos Island. Abingdon tortoise get extinct due to introduction of goat on island. क्या वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड था? नहीं, रिसोर्सेज वॉज नॉट लिमिटेड. अबिंगडन टर्टवाइज गेट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन. इनफाइनाइट रिसोर्स है यहाँ, इस केस में इनफाइनाइट रिसोर्स है बस, बट ड्यू टू ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज गोट अनदर एनिमल ग्रेजिंग एफिशिएंसी डिक्रीज. दूसरे की ग्रेजिंग एफिशिएंसी अब कम हो गई, डेट्स वाई वो एक्सटेंड कर गया. तो यहाँ पे इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन इसे कहा गया. इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन में यहाँ पे इनफाइनाइट रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है. Abingdon tortoise get extinct due to interference competition. Due to grazing efficiency of one species goat, another animal grazing efficiency decrease. New definition. In competition, two species decrease R of each other. R is equals to B minus D.
R is equals to B minus D. R is equals to B minus D, rate of natural increase. R is equals to B minus D. In competition, two species decrease R of each other. In competition, two species decrease R of each other. In competition, two species two species decrease R of each other. R बराबर B minus D. Rate of natural increase. Support to new definition. Competitive release. The support to new definition. Support to new definition. Competitive release. This support new definition. Competitive release. This support new definition. यहाँ पर गया superior species और यहाँ पे ये inferior species. ये यहाँ पे superior species ठीक, और यहाँ पे ये inferior स्पीसीज. ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव रिलीज. ठीक है, सपोर्ट टू न्यू डेफिनेशन, कॉम्पिटिटिव रिलीज, द सपोर्ट न्यू डेफिनेशन, सुपीरियर स्पीसीज और ये इन्फीरियर स्पीसीज. एक्सपेरिमेंटली सुपीरियर रिमूव. सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर दिया गया. एक्सपेरिमेंटली सुपीरियर रिमूव. तो फिर यहाँ पे बस इन्फीरियर बचा है. हाँ, तो फिर इन्फीरियर नंबर इंक्रीज जब सुपीरियर को रिमूव किया गया. तो definition of competitive release when two species living in a common geography, number of inferior species increase when superior one removed. When two species living in a common geography, definition of a competitive release. When two species living in a common geography, number of inferior species definition of competitive release. When two species living in a common geography, number of inferior species increase when superior one is removed. हाँ, यही competitive release. When two species living in a common geography, number of inferior species increase when superior one is removed. Okay, यहाँ मतलब उसके बाद आता है एग्जाम्पल. कॉल्ड्स फील्ड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे ऑर्थोपोड है बार्निकल. बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल. कैथामेलस inferior barnacle. Balanus is superior barnacle. Cathamelas inferior barnacle. Balanus is superior barnacle. Cathamelas is inferior barnacle. Cathamelas कैट छोटी होती है तो inferior है. ठीक है, बैलेनस superior है, बड़ा है एकदम भाई साहब. बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल और कैथामेलस इज इन्फीरियर बार्निकल. ठीक है, कैट छोटी है तो ये इन्फीरियर है और फिर वो बैलेनस बड़ा है भाई साहब. बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल, कैथामेलस इज इन्फीरियर बार्निकल. ओके, कोस्ट स्कॉटलैंड कोस्ट. बैलेनस ये सुपीरियर था. ठीक है, एक्सक्लूड एक्सटिंक्ट. जी, तो फिर यहाँ पे कैथामेलस जो इन्फीरियर है इसकी नंबर इंक्रीज हो गई. इफेक्ट ऑफ कंपटीशन. It decrease R of two species. It extinct species. It decrease R of two species. हाँ, effect of competition से क्या होगा? It decrease R of two species. It extinct species. Cause competitive exclusion
principle, competitive exclusion principle. Gauss competitive exclusion principle. Two closely related species cannot coexist infinitely. Inferior one has to get extinct. कंडीशन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो इनमें ये कंडीशन है, रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। किसमें? गॉस का जो था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने जो दिया था। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely. Two closely related species cannot coexist indefinitely. Inferior one has to get extinct. Inferior one has to get extinct. Condition resources limited. Gauss exclusive principle. Gauss competitive exclusion. Gauss competitive exclusion. Gauss competitive exclusion. Competitive exclusion. Gauss competitive exclusion. Gauss competitive exclusion. Closely related species superior को जब eliminate करेंगे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है ये, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, सुपेरियर एलिमिनेट इन्फीरियर, हाँ ये अपने आप खड़े हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होगा, हाँ ठीक है, सुपेरियर एलिमिनेट, सुपेरियर जो है सुपेरियर, हाँ एलिमिनेट इन्फीरियर, जैसे यहाँ पे बार्निकल बैलेनस और यहाँ पे बार्निकल कैथामेलस है, ये इसको एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे गॉट वाला एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि गॉट एंड टर्टवाइज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, ठीक है। और फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, अच्छा इसलिए वो आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में, या फिर इंटरफेरेंस कंपटीशन जो कहते हैं, कंपटीशन एक्सक्लूजन में गॉट एंड अबंडेंट टर्टवाइज किस में आएगा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में। अच्छा अगर गॉस लिखा हुआ है तब नहीं, हालांकि इंटरफेरेंस कंपटीशन ज़्यादा सही रहता, हाँ ठीक है छोड़ना। टू अवॉइड कंपटीशन, नेचर अवॉइड एक्सटिंक्शन, तो इसके लिए क्या होगा? रिसोर्स पार्सनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट को एक्सिस्टेंस। Resource parsing is an important mechanism which promote coexistence. Resource parsing is an important mechanism which promote coexistence. साथ रहे। Resources parsing is an important mechanism which promote coexistence. Resources parsing is an example. Resource parsing is an important mechanism. Resources parsing is an important mechanism which promote coextinction. Resource parsing is an important mechanism which promote coexistence. Different time of feeding, different pattern of feeding. मैकार्थर साइंटिस्ट नेम क्या है? मैकार्थर। इन्होंने वर्बलर बर्ड में देखा हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। मैकार्थर ये साइंटिस्ट का नाम है, मैकार्थर साइंटिस्ट नेम है, ठीक है। वर्बलर बर्ड में इन्होंने देखा हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट, ओके। रिसोर्स पार्सनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट को एग्जिस्टेंस। जैसे डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग है, हाँ डिफरेंट पैटर्न ऑफ फीडिंग, तो मैकार्थर साइंटिस्ट है, उन्होंने वर्बलर बर्ड में देखा डिफरेंट फीडिंग हैबिट, ओके। पैरासिटिज्म स्पीसीज ए
ये प्लस है यहाँ पे पैरासाइट, स्पीसीज ए यहाँ पे ये प्लस है पैरासाइट, फिर यहाँ पे स्पीसीज बी यहाँ पे माइनस है, ये हो गया होस्ट, ठीक है। स्पीसीज ए ये हो गया पैरासाइट प्लस है, ठीक है। स्पीसीज ए प्लस है, ये हो गया पैरासाइट, इसको तो मार दिया था, इसको तो मार दिया था, फिर ये 3 में कैसे आया, ये तो इसको तो मार दिया था, इसको सब पता है। नंबर ऑफ role of a parasite, it provide free loading space to live and free meal. तो देखने में क्या है, रोल ऑफ पैरासाइट, it provide free loading and free meal, it provide free living space to live and free meal. Role of parasite, it provide free loading space to live and free meal. This type of interaction is very common in plant, vertebrate and invertebrate. Meaning of co-evolution, parasite evolve to cause maximum harm or host evolve to protect itself, due to which specificity evolve. How specificity enter in parasitism? In future, some parasite may evolve into mutualism. फंजाई ये डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये हो गया सेप्रोफिटिक ये यहाँ पे फंजाई है, ठीक है। ये डेड ऑर्गेनिज्म, ये फंजाई है, ठीक है। ये डेड ऑर्गेनिज्म है, ये फंजाई है, ठीक है। ये जब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करा तो इसे कहेंगे सेप्रोफिटिक, ठीक है। और फिर ये जब फंजाई है, ये जब लिविंग के ऊपर है तो इसे कहेंगे पैरासिटिज्म। ये जब लिविंग के ऊपर फंजा है तो इसे कहेंगे पैरासिटिज्म। इक्टो पैरासाइट है ये, क्योंकि अभी ये आउटसाइड द होस्ट है, ठीक है। जब ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर था तो इसे कहेंगे सेप्रोफिटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरासाइट हो गया, पैरासाइट ये होस्ट है, एंड इंडोपैरासाइट इनसाइड द होस्ट, इनसाइड द होस्ट। Endoparasite inside the host. Parasite endoparasite inside the host. Parasite endoparasite inside the host. पैरासाइट होस्ट, ठीक है। और जब ये होस्ट है और पैरासाइट इसके अंदर है तो इसे कहेंगे इंडोपैरासाइट इनसाइड द होस्ट, ओके। यहाँ पे ये म्यूचुअलिज्म शो कर रहा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या पता फ़ायदा पहुँचाए आगे चल के, मे बी। Endoparasite show more adaptation to cause harm. Type of parasite, obligate parasite, single host. If a host extinct, then parasite also extinct. ये होता है obligate parasite. Single host, if a host extinct, then parasite also extinct. Some adaptation in parasite. Loss of unnecessary sense organ. Some adaptation in parasite, loss of unnecessary sense organ, adhesive
adhesive organ like hook present and sucker present. Some adaptation in parasite, loss of unnecessary sensory organ, adhesive organ like hook present and sucker present. हाँ, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन, अब उसको देखने का क्या ज़रूरत, हाँ वो तो पैरासाइट के अंदर रह रहा है बिल्कुल. तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन, एडहेसिव ऑर्गन एंड हुक प्रेजेंट एंड सकर प्रेजेंट. ठीक है, एडहेसिव ऑर्गन लाइक हुक प्रेजेंट एंड सकर प्रेजेंट. ठीक है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हाई, ग्लैंड्स एब्सेंट. ग्लैंड्स क्यों एब्सेंट हो गया, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के होस्ट के बॉडी में जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना है वो तो बस चूस रहा है, अब न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो फिर इसलिए ग्लैंड की अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्लैंड एब्सेंट. ठीक है, बाइसेक्सुअल, इसका अकेले भी गुजारा हो जाए, डेट्स बाइसेक्सुअल. हाँ, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, complex life cycle involve into host complex life cycle involve to host. Such a life cycle is diagenetic. Complex life cycle involve to host. Such a life cycle is diagenetic. Complex life cycle involve to host. Such a life cycle is diagenetic. Example liver fluke, snail और फिश हो गया. ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्व टू होस्ट. सच लाइफ साइकिल इज डायजेनेटिक. एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, स्नेल और फिश. ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, ह्यूमन और मॉस्किटो हो गया. ठीक है, क्यूटिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम एससीएल. हाँ, क्यूटिकल प्रेजेंट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एससीएल. एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, harmful effect of parasitism. It cause disease to host. Interfere reproduction capacity. Decrease lifespan. Change in behavior of host. Harmful effect of parasitism. It cause disease to host. It cause disease to host. Harmful effect of parasitism. It cause disease to host. It cause disease to host. Interfere reproduction capacity. Harmful effect of parasitism. It cause disease to host. Harmful
इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म, इट काउज डिजीज टू होस्ट, बिल्कुल भाई, इंटरफेयर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, डिक्रीज लाइफ स्पान, चेंज इन बिहेवियर ऑफ होस्ट, type of parasite, endoparasite, ectoparasite, ectoparasite which is present outside the host, example lice in human, ticks in dog, copepods, copepods on fish, endoparasite which is present inside host, endoparasite which is present inside host, endoparasite which is present inside host, they are mainly present in liver, gallbladder, lungs, intestine, example liver fluke, ascaris in intestine, endoparasite which is present inside host, endoparasite which is present inside host, endoparasite which is present inside host, example they are mainly present in liver, gallbladder, lungs, intestine, example liver fluke, और फिर ascaris in intestine, बिल्कुल ascaris in intestine. Types of parasite in plant, holoparasite, types of parasite, holoparasite or semi-parasite. Holoparasite, plant is completely depend on host, plant is completely depend on host, plant is non-pathogenic, holoparasite, plant is completely depend on host, plant is non-photosynthetic, semi-parasite, plant is parasitic, partially depend on host, holoparasite, plant is completely 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 depend on host, plant is completely depend on host, plant is non-photosynthetic, plant is completely depend on host, plant is completely depend on host, plant is non-photosynthetic, plant is completely depend on host, plant is completely depend on host, plant is non-photosynthetic, holoparasite, plant is completely depend on host, type of parasite in plant, holoparasite, plant is completely depend on host, holoparasite, plant is completely depend on host, plant is non-photosynthetic, semi-parasite, plant is parasitic, partially depend on host, plant is parasitic, partially depend on host, plant is parasitic, partially depend on host, बिल्कुल ये सब सेमी पैरासाइट का, प्लांट इज पैरासिटिक पार्सली डिपेंड ऑन होस्ट, प्लांट इज पैरासिटिक पार्सली डिपेंड ऑन होस्ट, होलो में प्लांट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, होलो में हो गया प्लांट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, प्लांट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेमी पैरासाइट, प्लांट इज पैरासिटिक पार्सली डिपेंड ऑन होस्ट, ओके। रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, plants present on root, Rafflesia orophancy, present on root, Cuscuta orthobim, Cuscuta
एरिथोबियम, कस्क्यूटा एरिथोबियम प्रेजेंट ऑन स्टेम, प्रेजेंट ऑन स्टेम, ठीक है। और फिर ये हो गया होलोएंड्रिक नॉन ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉरेंथस विस्कस स्ट्रिगा सेंटिलम, ये हो गया सेमी पैरासाइट। टाइप ऑफ पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, ऑल्सो बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, ऑल्सो पैरासाइट। बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, ई कोलाई ऑल्सो पैरासाइट है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज वायरस पैरासाइट है, बैक्टीरियोफाज वायरस पैरासाइट है। ओके, तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, ई कोलाई भी ऑल्सो पैरासाइट है, और बैक्टीरियोफाज ये भी वायरस पैरासाइट हो गया, ठीक है। तो फिर बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई। ओके, मॉस्किटो नॉट पैरासाइट, मेन फूड है इसका, मेन फूड है इसका प्लांट सेप, लेकिन मेल एनाफ्ली अटैक वार्म ब्लडेड, female anopheles attack warm blooded for blood for reproduction. Female anopheles attack warm blooded female anopheles main food plant sap, main food plant sap, a female anopheles attack warm blooded for female anopheles attack warm blooded for blood for reproduction. Brood parasitism, cuckoo bird and crow. Brood parasitism, cuckoo bird. ब्रूड पैरासिटिज्म, कुकू बर्ड एंड क्रो, कुकू बर्ड यहाँ पे ये पैरासाइट है, ठीक है। क्रो ये होस्ट है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म एक प्लस में रहता है, एक माइनस में, तो क्रो यहाँ पे नुकसान में है, बट कुकू बर्ड ये प्लस है, ये फ़ायदे में, क्योंकि पैरासाइट है। यहाँ पे क्रो एग है और कुकू बर्ड अपना भी एग ला के यहाँ पे रख देती है। कुकू बर्ड ले एग इन नेस्ट ऑफ क्रो, एग हैव सिमिलरिटी विथ एग ऑफ क्रो। हाँ, तो कुकू बर्ड का जो एक वो सिमिलरिटी रखता है क्रो के एग से, तो फिर यहाँ पे क्रो एग मैच करता था, तो फिर उसका केयर करता, उसको फीड करता, ठीक है। नेस्ट ऑफ क्रो, नेस्ट था किसका? क्रो का। एग ऑफ कुकू बर्ड इवॉल्व सिमिलरिटी विथ एग ऑफ क्रो टू अवॉइड डिजेक्शन, टू अवॉइड थ्रोन आउट, नहीं तो वो बाहर फेंक देगा, अलग लगेगा, तो बिल्कुल। कमन सेलिज्म स्पीसीज ए प्लस में है और एक जीरो में रहता है, स्पीसीज बी ये जीरो, ठीक है। वन स्पीसीज गेट बेनिफिट, अदर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। One species get benefit another species, one species get benefit and other neither benefit nor harm। तो एक को तो बेनिफिट मिल रहा, बट अदर स्पीसीज neither benefit nor harm, ठीक है। एग्जाम्पल पहला, ऑर्चिड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो, ऑर्चिड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो। ऑर्चिड ये स्मॉल मोनोकॉट प्लांट है, ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये मैंगो ये ज़ीरो है, ये मैंगो ज़ीरो, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान मैंगो को, बट ऑर्चिड को तो फ़ायदा है। तो ऑर्चिड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो, ऑर्चिड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो, ऑर्चिड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो। स्मॉल मोनोकॉट प्लांट है ये ऑर्चिड, ठीक है।
ऑर्चिड गेट बेनिफिट बाय गेटिंग लाइट, इसको लाइट मिल गया तो इसको फायदा हो गया, मैंगो तो कुछ नहीं, तो ये जीरो में है, कमर्शियल नहीं होता, एक को प्लस दूसरा जीरो। सेकंड कैटल अर्गेट एंड कैटल, कैटल अर्गेट एंड कैटल, कैटल अर्गेट ये बर्ड का नाम है और कैटल ये, कैटल पुल ग्रासेस अलॉन्ग विथ इट सम इंसेक्ट, जो कि बाहर निकल जाता है, तो फिर इटन बाय बर्ड, कौन सी बर्ड, कैटल अर्गेट, तो फिर कैटल अर्गेट को खाना मिल गया और कैटल को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, तो एक प्लस में है और एक जीरो। ओके, बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल, बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल, बार्निकल ये प्लस में है और वेल ये जीरो, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। बार्निकल विथ वेल, बार्निकल ये इसके पीठ पे बैठ जाता, बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल, बार्निकल विथ वेल न्यू सोर्स ऑफ फूड, वहाँ पे ये मूव करके चला जाता, हाँ वेल मूव करके जा रही है, बार्निकल इसके पीठ पे बैठ गया तो ये भी मूव करके चला गया कहाँ, न्यू सोर्स ऑफ फूड, वहाँ पे इसको भी खाना मिल गया, ठीक है। बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल। फोर्थ सी एनिमॉन एंड क्लॉन फिश, सी एनिमॉन एंड क्लॉन फिश, सी एनिमॉन एंड क्लॉन फिश, ये टेंटिकल्स, ये टेंटिकल है, इसमें नीडोब्लास्ट है, इसमें नीडोब्लास्ट है, न्यूरोटॉक्सिन, इसमें नीडोब्लास्ट है, न्यूरोटॉक्सिन, ये पैरालाइज का काम करता, ये पैरालाइज कर देता। ये जो है क्लोन बर्ड, यहाँ पे ये क्लोन बर्ड है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, क्लोन बर्ड को प्रोटेक्शन मिल गया प्रीडेटर से, तो क्लोन बर्ड ये फ़ायदे में है, बट ये जो टेंटिकल्स है इसका यहाँ पे नीडोब्लास्ट है, ये पैरालाइज कर देता, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता और इसे पैरालाइज कर देता जो भी इसके पास आता, तो फिर सी एनिमॉन को तो ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, बट क्लोवर बर्ड वो बच गई, प्रोटेक्शन उसको मिल गया प्रीडेटर से, तो फिर सी एनिमॉन एंड क्लोवर बर्ड, सी एनिमॉन एंड क्लोवर बर्ड। ऑर्चिड ऑन मैंगो ट्री फर्स्ट, सेकंड वो कैटल एंड कैटल अर्गेट, थर्ड वेल एंड सॉरी बार्निकल ऑन द बैक ऑफ वेल, फोर्थ ये हो गया सी एनिमन एंड क्लॉन फिश, सी एनिमन एंड क्लॉन फिश, बिल्कुल। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म बोथ गेट बेनिफिट, म्यूचुअलिज्म बोथ गेट बेनिफिट, म्यूचुअलिज्म बोथ गेट बेनिफिट। टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म non-obligatory, type of mutualism non-obligatory, it is not necessary for both species to live together, तो ये non-obligatory, it is not necessary for both species to live together। example clover bird and crocodile, clover bird and crocodile, crocodile और क्लोवर बर्ड सॉरी प्लोवर बर्ड, यहाँ पे क्या है प्लोवर बर्ड, प्लोवर बर्ड, प्लोवर बर्ड इट फ्लैश फ्रॉम टीथ ऑफ कोकोनट, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के रखता है, क्रोकोडाइल के दांत में बहुत सारा फ्लैश फंसा हुआ है, तो फिर ये प्लोवर बर्ड आती है और उसके टीथ के बीच से वो फ्लैश खा लेती है। इट फ्लैश फ्रॉम टीथ ऑफ क्रोकोडाइल, तो फिर क्रोकोडाइल का दांत साफ हो गया, तो इससे दोनों को फायदा मिल गया, दोनों ये म्यूचुअलिज्म है, इसको भी फायदा हो गया, बट ये नॉन ऑब्लिगेटरी, कौन, प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। दूसरा है ऑब्लिगेटरी, सिम्बायोटिक, इट इज नेसेसरी फॉर बोथ स्पीसीज टू लिव टुगेदर। एग्जाम्पल of mutualism, symbiotic type, obligatory type, lichen, both species get benefit, algae ये फोटोसिंथेसिस कर रहा और फिर फंजाई सेल्टर एंड मिनरल एंड वाटर, इसको मिल गया सेल्टर भी मिल गया और मिनरल एंड वाटर भी मिल रहा फंजाई को, फंजाई ये काम कर रहा और अलगी का काम है फोटोसिंथेसिस करने का। बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट, अलगी ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा और फिर फंजाई ये सेल्टर प्रोवाइड कर रहा और पानी और मिनरल्स ला के दे रहा, ठीक है। माइकोराइजा, लाइकेंस हो गया अलगी और फंजाई, ठीक है। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंजाई फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे फंजाई जीनस कौन सा है, ग्लोमस, ये मिनरल्स और वाटर्स ला के देता है, मैंने फॉस्फोरस था। और फिर यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो गया ऑर्किड और जिम्नोस्पर्म पाइनस के साथ ही रहता है, हाँ। और फिर उसको क्या मिल रहा है साथ में, फूड और नाइट्रोजन मिल रहा, ठीक है। थर्ड है यूका प्लांट एंड मोथ, यूका प्लांट ये क्या करता है, स्पेस फॉर एग लेइंग, ये स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर एग लेइंग, और मोथ ये क्या काम करता है, ये पॉलिनेशन का काम कर रहा है। तो फिर यूका प्लांट एंड मोथ, यूका प्लांट एंड मोथ, यूका प्लांट स्पेस फॉर लेइंग एग, स्पेस फॉर लेइंग एग, और ये मोथ ये पॉलिनेशन का काम कर रहा है, ठीक है। फोर्थ है फिग प्लांट एंड वॉस्प, फिग प्लांट एंड वॉस्प, फिग प्लांट स्पेस फॉर एग लेइंग, फिग प्लांट स्पेस फॉर एग लेइंग, हाँ ये एग ले करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, और वॉस्प ये इंसेक्ट ये पॉलिनेशन का काम कर रहा है। यूका प्लांट एंड मोथ हो गया, फिग प्लांट एंड वॉस्प, ठीक है, ये दोनों स्पेस फॉर लेइंग एग और ये पॉलिनेशन करा रहा। लाइकेन हो गया फंजाई प्लस अलगी, ठीक है। और फिर माइकोराइजा, यहाँ पे ये फंजाई है ग्लोमस जीनस और फिर प्लस हायर प्लांट्स। ऑर्किड, ऑर्किड
orchid ophidius, 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 yellow, orchid ophidius, orchid ophidius, orchid ophidius, orchid ophidius, orchid orchid ophidius नाम है इसका. फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, मेल बी, मेल बी pollinate when it come for reproduction, male bee pollinate when it come for reproduction. Pseudo copulation, no reproduction occur. Male bee pollinate when it come for reproduction, pollinate when it come for reproduction. Pseudo copulation, pseudo copulation, no reproduction occur, no reproduction occur. It is a type sexual decide, it is a type of sexual decide. With time flowers evolve similarity in margins and color with flower and color with female bee. ऑर्किड इसका नाम है यहाँ पे ओफाइडस, ऑर्किड इसका नाम है यहाँ पे ओफाइडस. फ्लावर लाइक फीमेल बी, लुक लाइक फीमेल, लुक लाइक फीमेल बी. फ्लावर जो यहाँ पे ओफाइडस है, ऑर्किड ओफाइडस नाम है, ठीक है. फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी. मेल bee pollinate when it come for reproduction. Pseudo copulation, no reproduction occur. It is a type of sexual deceit. With time flower evolve similarity, flower evolve similarity with margins and color with female bee. Flower similar to female bee के जैसे दिखने लगती है, ठीक है. With time flower evolve similarity in margins and color with female bee. Okay, this chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.